Okay. In next class, we have already studies about the number. Okay. Yes, sir. Yes. What is number and how to represent a number? These all we have already studied in the previous class. Okay. Today class, we will study two topics. The first one is estimation of a number. What I said? Estimation of a number. Of number. That means rounding of a number. Okay. For example, when you have a huge calculation, okay, what you will do? We will round that calculation and get and to reach to the approx result. हम लोग क्या करते हैं? अगर कोई ह्यूज कैलकुलेशन हो, ठीक है बेटा? If there is a huge calculation, what we will do? We will round our sum to get to reach to the approx calculation. Okay. For example, I'm giving you the calculation addition. Okay. I'm giving you addition of two number. And the number is 4, 6, 8, 9, 3, 4. Make sure no one is making sound from your background. Okay. Utkarsh, make sure no one is making sound from your background. Okay. And in 4, 6, 8, 9, 3, 4. Okay. You have to add 5, 6, 7, 8, 9, 1. Okay. This is the huge calculation. You have to do the addition. Okay. This is the huge calculation. Okay. And if you go through this calculation by word, by digit, okay, it will take time. It will Take time. take Time. okay. To save our time, what we will do? We will not do the calculation by digit. Okay. To save time, what we will do? To save time, what we will do? We will not go addition by addition of digit by digit. Okay, clear? Then what we will do? We will go for approx result by rounding this number. Hello, Ans, please don't. Hello. Yes, sir. From your background. Okay. What we will do? हम लोग क्या करेंगे? We will round this digit. Okay, that means we will estimate this digit so that the calculation is easy. For example, if someone giving you, for example, you have to add 47, okay, and 57. Whose addition is easy? The first one or the second one? Naman Kumar, tell me. Hello, sir. Yeah. Second. My net is not working properly. But your voice is audible. क्या नमन तुम मेरे वीडियो को क्लियरली देख पा रहे हो और सुन पा रहे हो? नमन Hans Kumar. Yes, sir. The first case. In the first case, it is easy to add, or in the second case? So second case. Second case. Why? Sir, because second case have 0, 0, 0. Yes, it is easy to add the second case. So, okay, it is easy to add second case. No. So what we'll do in the case of estimation, okay,
we convert, okay, we convert our digit in this form, okay, in approx form, okay, it's clear? सतीश कुमार, इट्स क्लियर? हम लोग क्या करते हैं, अपने डिजिट्स को कन्वर्ट करते हैं एक सिंपलर फॉर्म में, ठीक है? Yes, sir. बैकग्राउंड No, sir. यस, उत्कर्ष, उत्कर्ष, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, उस डिजिट को कन्वर्ट कर देते हैं किस फॉर्म में बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म में, सो दैट it is easy to add, subtract or do other mathematical operation. Okay, it's clear? Shall I proceed? Hans, Yes, sir. noise is coming from your background beta. No, sir. Yes. Okay, so in the case of what we'll do, we will study the estimation for tens digit, for 100 digit and for 1000 digit. Okay, what we'll do, we will study the estimation okay, and estimation, what I say, it means round off the figure, round off Figure. the figure. Why we will round off the figure? To make the calculation easy. Why we round off the figure? To make the calculation Easy. Calculation easy. Okay, it's clear? Yes, sir. Shall I repeat? Yes, sir. Utkar, shall I repeat? No, sir. तो और एस्टिमेशन में हम लोग किसको किसको एस्टिमेट करेंगे? टेंस प्लेस को, ठीक है? टेंस प्लेस, देन 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस, ओके? तो इस प्लेस को हम लोग क्या करेंगे? एस्टिमेशन करना सीखेंगे, ठीक है? किस तरह हम उसको एस्टिमेट करते हैं। अच्छा बताओ, क्या मैं एस्टिमेशन से एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं? With the help of estimation, can we reach to the exact answer or we will reach to the approx answer? Approx answer. Approx answer, yes. With the help of estimation, Satish, we will reach to the approx answer. We will never get the exact answer. Okay? For example, 53 plus 43. What will be the exact answer? 96. 96, yes. Okay? But suppose we estimate this digit 53 as 50, okay? And 43 as 40. What will be the result? 90. 90. These two results are equal. Answers Yes, sir. coming from your background. Someone is talking in your background. 2 minutes, sir. Please ensure that no sound comes from your background. If there is sound from your background, then I'm getting disturbed. So please never disturb me. It's okay? Yes, sir. Once now you are ready, shall I start? Yes, sir. Okay. तो मैंने क्या आपसे पूछा कि ये क्या है? एग्जैक्ट रिजल्ट है, ठीक है? ये क्या है? अप्रोक्स रिजल्ट है, Approx. ठीक है? तो क्या में एग्जैक्ट और अप्रोक्स में डिफरेंस है? एग्जैक्ट और अप्रोक्स में Yes, sir. Yes, sir. ना? And this difference sir. is called error.
This difference is called error. Okay, what it is called? It is called error. Means सर मेरा आवाज आ रहा है? yes, आपकी आवाज भी आ रही है, वीडियो भी आ रही है, ठीक है बेटा? हेलो हाँ नमन, आपका आवाज आ रहा है, आई कैन हियर यू, कैन यू हियर मी? कैन यू सर हियर मी? अच्छा से तो नहीं, लेकिन समझ लेंगे। समझ लोगे? अच्छा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, इसका वीडियो फॉर्म भी अवेलेबल होगा, ठीक है? ओके सर। आपको मैं लिंक भेज दूंगा, आप अपने व्हाट्सएप पे भी देख सकते ओके ओके सर। हो। मैंने क्या बोला देखो, ये क्या है? एग्जैक्ट रिजल्ट है, ये क्या है? अप्रॉक्स रिजल्ट है। रिजल्ट Between the exact and approx result is called Satish Kumar. The difference between the exact and the approx result is called what it is called? Ans एरर सर। error. Okay, Utkarsh. Yes, sir. The difference between the exact and the approx result is called Error. ओके। तो क्या होगा जब हम लोग एग्जैक्ट से राउंड ऑफ करेंगे तो कुछ ना कुछ एरर होगा हमारे रिजल्ट में। हम लोग क्या करेंगे? वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट दैट एरर। ओके ओके, वी आर नॉट केयरिंग बॉदरिंग। यस सर। about our error. Okay, ठीक है। when we do estimation, it's clear? जब हम लोग एस्टिमेशन करेंगे तो हम लोग एरर को के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है? उसके रिजल्ट में कुछ ना कुछ एरर आएंगे, ठीक है? ओके, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग रियल के नजदीक नहीं पहुंच रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? रियल पे नहीं, या तो रियल से पहले पहुंच रहे हैं या रियल के बाद पहुंच रहे हैं। अप्रोक्स में यही होगा ना, जहां एग्जैक्ट रिजल्ट होना चाहिए हम लोग एग्जैक्ट रिजल्ट के ऊपर नहीं पहुंच रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच रहे? क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी क्या किया है, अपने जो पेरेंट कैलकुलेशन है उसको इजी बनाने के लिए उसको क्या किए? एस्टिमेट किए। और कभी भी एस्टिमेशन में हम लोग क्या करते हैं? एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है? नियर टू रिजल्ट होते हैं। क्या होता है बेटा? नियर टू रिजल्ट होते हैं। Always remember, in the estimation we are near to our result, near to our result. To our result. Okay, it's clear? Yes, sir. Anyone have any doubt? No sir. Shall I erase No sir. the screen? Yes sir. Utkarsh, shall I erase the screen? Yes, sir. Yes. Satish, you all write it on your notebook or not? Yes, sir. Not written. Please write it. Ans, Yes sir, लिख रहा है। Utkarsh, Utkarsh, Yes, sir. लिख रहे हैं। shall you open your video? उत्कर्ष बेटा वीडियो को ऑन करो कि मैं भी आपको देख सकूं, ठीक है? इसको लिख लीजिए, ठीक है? इसके बाद हम लोग रूल्स पढ़ेंगे एस्टिमेशन का, ठीक है बेटा? About our error. हो गया सर। हो गया सर। उत्कर्ष क्या दूं? सतीश एरेज कर दूं? No, sir. हाँ नमन, यस सर, हो गया। समझ में आ रही है? यस यस सर, Can we समझ लेंगे सर। can we say in the estimation we exactly do the rough calculation? क्या हम लोग बोल सकते हैं estimation में हम लोग क्या करते हैं? रफ कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? रफ कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है?
Can I say that in the estimation we do the rough calculation? Okay. Can I say it? Naman? Naman, can I say in the estimation we will do our rough calculation? Can I say it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And in the rough calculation, we never reach exact answer. Okay. In the rough calculation, we will never reach to our exact calculation. Okay. It's okay or not? It's okay or not? Okay, sir. Okay, sir. Okay. Now we will study about the rules for rounding the figure. Okay. Okay, sir. Yeah, rules for estimation. It's okay. Write it. Yes, sir. Rules for Estimation. rule for estimation. ओके देखो जब भी सबसे पहले क्या करो, फाइंड करो कि कहां तक एस्टिमेशन करने के लिए आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ठीक है बेटा, सपोज करो आपको बोला जा रहा है एस्टिमेट टिल 10th प्लेस। ठीक है, कहां तक बेटा? एस्टिमेट टिल 10th प्लेस। फॉर एग्जांपल 7, 8, 9 this number is given, okay, and what in the question it is given estimate till 10th place। ठीक है, क्या करना है? 10th place तक एस्टिमेट करना। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. 10th place Yes, sir. जब देगा 10th प्लेस हम लोग इससे एक पीछे चलेंगे। ठीक है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। कैसे चलेंगे बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, जो प्लेस में होगा वो क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। मतलब अगर 10th प्लेस का एस्टिमेशन बोल रहा है, हम मेरा प्राइमरी फोकस कहाँ होगा? Ones place. प्राइमरी फोकस, यस, इट इज ऑन वंस प्लेस, यूनिट्स प्लेस। ओके, मेरा प्राइमरी फोकस कहाँ होगा बेटा? सतीश, प्राइमरी फोकस Yes, sir. Once unit. कब? One. कब? जब वो टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Estimate up to 100. Estimate up to 200. तो मेरा प्राइमरी फोकस कहां पे होगा? 10th पे. 10th प्लेस पे. होगा बेटा? Ones पे. नहीं, मैंने क्या बोला? 10th पे. डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। जब टेंस की बात करेगा तब होगा वंस पे। जब 100 की बात करेगा, यस सतीश इज राइट, तब किसका प्राइमरी फोकस में? ठीक है नमन, Yes, sir. समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ अंश, समझ में आया? Yes, sir. नहीं अंश, जब मेरा एस्टिमेट अप टू 1000 बोलेगा, प्राइमरी फोकस मेरा किस पे होगा? 100 पे. 100 पे। नमन टेल मी, जब बोलेगा एस्टिमेट Hello. अप टू, नमन टेल मी, जब बोलेगा एस्टिमेट अप टू 1000, 10,000 Estimate up. तो मेरा प्राइमरी फोकस कहां पे होगा? 10th पे. बेटा Sir, 1000 पे. 1000 1000 पे sir. मैंने क्या बोला? एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। ठीक है, Decreasing order में. फोकस कहां होगा? 1000 पे। ठीक है,
It's right or not? Yes, Right, sir. sir. Shall I Right. erase the screen? Yes, sir. Hello. Shall I erase the screen? Yes, sir. You have write it? Yes, sir. Please write it. Means सबसे पहले देखो क्या करना है, मैं ऑब्जर्व करूंगा कि कहां तक एस्टिमेट करने बोला है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा कि यू हैव टू एस्टिमेट टिल 10th प्लेस, टिल 100 प्लेस, टिल 1000 प्लेस, टिल 10,000 प्लेस, टिल लाख। ठीक है, ये दिया रहेगा ऑलरेडी क्वेश्चन में कि हम मेरा एस्टिमेशन कहां तक करना है। ठीक है, वो जिस डिजिट तक बोलेगा एस्टिमेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्राइमरी फोकस को रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, एक डिक्रीजिंग मेरा प्राइमरी फोकस होगा। ठीक है, और वहां पे क्या करेंगे हम लोग, उसके एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग प्लेस वैल्यू में हम लोग चेक करेंगे। इस चीज को चेक करेंगे, वी विल चेक द सर्टेन रूल्स, ओके, सो दैट वी विल राउंड इट। ओके, tell you all write it? Yes, sir. Yes, Satish, have you write it? Yes, sir. Yes, sir. Shall I erase the screen? Naman? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I will erase the screen. Okay. Now, let's, okay, first case. Okay, it will be the first case. Suppose the estimation up to up to 10th place. Okay, okay, Naman? Yes, sir. In the case of 10th place, estimation up to 10th place, where is our primary focus? One's place. Primary focus is our ones place या unit place. Okay, it's clear? Yes, sir. Give an example of a digit up to 10th place. Sir, 84. Okay, 84. Okay, देखो ये कौन सा प्लेस है बेटा, यूनिट प्लेस है। ठीक है, और यूनिट प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वंस। ये मेरा कौन सा प्लेस है बेटा, टेंस। ओके, क्लियर यहां तक? मैंने क्या एस्टिमेशन कहां तक बोल रहा है, 10th प्लेस तक। 10 के, तो मेरा प्राइमरी फोकस कहां पे है, वंस पे। ठीक है, तो मैं इसको चेक करूंगा, क्या करूंगा बेटा, वंस को क्या करूंगा, चेक करेंगे। चेक करेंगे। क्या चेक करना है कि जो ये वंस प्लेस पे डिजिट है ये ग्रेटर देन या लेस देन है 5 से। 5 से क्या चेक करेंगे बेटा, ग्रेटर है या स्मॉलेस्ट है 5 से। 5 से। ठीक है, इसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, अब टेल मी, नमन कुमार समझ में आ रहा है? नमन? यस सर। समझ में आ रहा है? हेलो। हाँ, समझ में आ रहा है? हेलो। समझ में आ रहा है? सर आवाज नहीं सर आपका आवाज नहीं आ रहा अच्छा से। मेरी आवाज आ रही है बेटा? अंश, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। सतीश, आपको? यस सर। ओके, नमन तुम्हारे साइड से कोई बेटा प्रॉब्लम है? ठीक है, यहाँ से और हर चीज क्लियर है। ठीक है, देखो सर इधर नेट का भी प्रॉब्लम है। हाँ बेटा, वो होगा, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करो। ठीक है, इसका मैं रिकॉर्डेड फॉर्म भी उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, देखो क्या बोला, जब बोला एस्टिमेशन अप टू 10th प्लेस, तो इस केस में मेरा प्राइमरी फोकस कहां पे होगा, ठीक है, और क्या करेंगे हम, यूनिट्स को चेक करेंगे, वो क्या है बेटा, लेस देन या ग्रेटर देन है 5। ठीक है,
यहां से दो केस बनेगा। फर्स्ट केस क्या बन सकता है, वो क्या हो, ग्रेटर देन 5 हो, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस। एंड सेकेंड केस क्या हो सकता है, वो 5 से क्या हो बेटा, Small. लेस हो। Small. ये दो चीज हो सकता है ना। Yes, sir. जब हम क्या करेंगे, इसके यूनिट या टेंस प्लेस को चेक करेंगे, या तो वो 5 से बड़ा होगा या 5 से छोटा होगा। और 5 से बड़ा का मतलब क्या हो सकता है, 6, 7, 8, 9। ठीक है। देखो Yes, sir. इसी में हम लोग लेंगे इक्वल टू, जो 5 के बराबर भी होगा उसको भी हम लेंगे फर्स्ट केस में, ठीक है बेटा। अगर वो 5 से, देखो दो केस करना है, या तो 5 के बराबर, ठीक है बेटा, समझ में आ रही है, Yes, sir. केस दो करना है, उसको जो कंडीशन है उसको दो केस में डिवाइड करना है। एक केस में क्या रखना है, या वो क्या हो, 5 से बड़ा हो, क्या हो बेटा, 5 से बड़ा हो, 5 से या दूसरा केस क्या होगा, 5 से छोटा हो या 5 के बराबर हो, क्या हो बेटा, 5 से छोटा या 5 के बराबर। बराबर हो। ये क्या हुआ, सेकेंड केस। पहला केस क्या हो सकता है, या वो 5 से बड़ा हो, ठीक है, सॉरी इसको मिटा दो, ये नहीं होगा। जब वो 5 से छोटा हो या 5 के बराबर हो, तो वो हो क्या सकता है यूनिट प्लेस पे, देखो ये 6 ये गलत लिखा गया, ठीक है। मैं क्या बोला, जब कोई भी डिजिट या तो 5 के बराबर या 5 से छोटा हो, तो वो हो क्या सकता है, अंश Yes, sir. क्या हो सकता है, Sir, 6, 7, 8, 9. बेटा कैसे होगा 6, 7, क्या 6, 7, 8, 9 5 से छोटा है या इक्वल टू 5 है, सब बड़ा है. बड़ा है। हाँ, नहीं यहाँ पे क्या, ये केस क्या है, ये साइन क्या शो कर रहा है, या तो वो 5 फर्स्ट या तो वो 5 के इक्वल टू हो या 5 से छोटा हो। तो 5 के इक्वल टू या 5 से छोटा होने के लिए कौन से डिजिट हो सकते हैं, 8 to 5। 1 2 3 4 5 हो सकते हैं, क्या 6 हो Yes, sir. यस सर। इस केस में 6 हो सकते हैं, नो सर। यस No, सर। sir. नहीं होंगे बेटा, नहीं हो छोटा में 6 कैसे होगा। यस सर। यस ये इस साइन को देखो, इस साइन का मतलब क्या होता है, स्मॉलर देन। ये साइन क्या होता है, स्मॉलर देन, मतलब 5 से छोटा हो या ये इक्वल टू है, इसका मतलब क्या होता है 5 के बराबर हो। तो 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। 10 मिनट बाद क्लास खत्म होगी, ठीक है, फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है बेटा। Yes, sir. इसके बाद क्लास भी है क्या, हाँ सर। क्लास कितने बजे से है इसके बाद, 9 बजे। 9 बजे से है, ठीक है। बोर नहीं होते हो ना, नो सर। नो। समझ में आता है, Yes, sir. यस। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, देखो क्या करना है, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन किसका कर रहे थे, अप टू टेंस का। इसमें मेरा प्राइमरी फोकस क्या था बेटा, Once unit पे. वंस या यूनिट्स। एग्जाम्पल किसका लिए थे 84, मेरा प्राइमरी फोकस क्या होगा, वंस पे। इसको क्या करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है, दो केस में, एक क्या होगा, फर्स्ट केस क्या होगा, वो क्या हो, 12 केस. लेस देन या इक्वल टू 5 हो, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता यस। है, ग्रेटर देन 5 हो। जब वो लेस देन या इक्वल टू 5 होगा, तो क्या हो सकता है, 0 फर्स्ट केस। 1 2 3 4 5, यही हो सकता है यूनिट प्लेस पे, हाँ। Yes, यस सर। sir. दूसरा केस देखो यहाँ पे, ग्रेटर देन 5 हो, मतलब क्या, वो डिजिट क्या हो सकता है, 6 7 9 हो सकता है, यही हो यस सकता सर। है। मतलब क्या, हम लोग चेक करेंगे कि मेरे यूनिट्स प्लेस पे वो 5 से छोटा है या इक्वल टू 5 है, और वो 5 से बड़ा है, ठीक है।
अब देखो, अब यहाँ पे याद रखना, जब वो क्या हो, 5 से छोटा हो या 5 के इक्वल टू हो। क्या हुआ? जब वो 5 से छोटा हो या 5 के इक्वल टू हो, तो मेरा यहाँ पे क्या करेंगे उसमें, इसको यूनिट्स प्लेस को हम लोग क्या बना देंगे, 0 कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? यूनिट्स प्लेस को 0 कर देंगे, ठीक है। एंड जो टेंस प्लेस है, ठीक है, को नो चेंज करेंगे। क्या करेंगे बेटा? नो चेंज। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब देखो, जब वो 5 से बड़ा हो, जब वो क्या होगा बेटा, 5 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे, यूनिट्स प्लेस पे क्या करेंगे, 0। नहीं, 5 से बड़ा, ये 5 से छोटा में मैं बोला, ये 5 से छोटा में मैं बोला। जब वो क्या हो, 5 से छोटा हो या इक्वल टू 5 हो, हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स प्लेस को 0 कर देंगे और टेंस प्लेस में क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। जब वो 5 से बड़ा हो, क्या हो बेटा, जब वो 5 से बड़ा हो, हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स प्लेस को क्या बना देंगे, 0 बेटा। और टेंस प्लेस में 1 ऐड, प्लेस में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। ऐड 1। इट्स क्लियर? यस सर। समझ में आया? अगर मेरा जब बोला एस्टिमेशन अप टू टेंस प्लेस, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी फोकस कहां पे रखेंगे, प्राइमरी फोकस मेरा होगा वंस या यूनिट्स प्लेस पे। ठीक है बेटा, हम लोग क्या करेंगे, वंस या यूनिट्स प्लेस को चेक करेंगे कि क्या जो यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 से छोटा एंड बड़ा, 5 से छोटा एंड 5 के बराबर है या 5 से छोटा है। ठीक है, क्या चेक करेंगे कि वो 5 से छोटा है या 5 के इक्वल टू है, और या वो 5 से बड़ा है। ठीक है, जब वो 5 के से छोटा और 5 के बराबर हो, क्या हो सकता है, 0 1 3 4 5। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट होगा उसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, जो यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट होगा उसको हम लोग 0 में कन्वर्ट कर देंगे, और जो मेरा डिजिट होगा टेंस प्लेस पे उसमें क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरा यूनिट्स प्लेस पे 5 से बड़ा डिजिट हो, क्या हो बेटा, अगर यूनिट्स प्लेस पे 5 से बड़ा डिजिट हो, क्या हो सकता है, 6 यूनिट्स को 8 9 हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स प्लेस को 0 में कन्वर्ट कर देंगे और टेंस प्लेस पे 1 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, टेंस प्लेस पे 1 ऐड कर टेंस प्लेस में 1 ऐड कर चलो। देंगे। अब यहाँ पे बताओ, ये जो 4 है ये 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है, छोटा है। छोटा है। छोटा। तो कौन सा कंडीशन होगा, फर्स्ट केस होगा। यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स प्लेस को क्या बनाएंगे, यूनिट्स प्लेस को क्या बनाएंगे बेटा, हाँ जी सतीश कैन यू हियर मी, हेलो नमन, यस सर। कैन यू हियर मी, हेलो कैन यू हियर मी सर। हाँ सर, थोड़ा बहुत सुन सकते ओके। हैं। अंश यस सर। कैन यू हियर मी,